Hi everybody, very happy new year. And today we will be doing some more sections on Bharati Nyaya Sanhita. So today we will be seeing what are the consequences if we disclose the name of rape victim. Then what are the consequences? What are the punishments if there are any punishments to that offense? ठीक है ना? Section 72 क्या कहता है? Whoever prints or publishes the name, कोई भी इंसान या प्रिंट कर दे या उसका नाम पब्लिश कर दे, मतलब रेप विक्टिम का, or any matter which may make known the identity of any person against whom an offense under section 64, रेप हो गया, ये सब रेप के सेक्शन है. सेक्शन 69, section 69 is very famous section where false promise to marriage is made and then the boy backs away from marrying, and before backing away he has already made sexual intercourse on false promise of marriage. That is section 69. section 68 क्या है? सेक्शन 68 इज अथॉरिटेटिव पोजीशन में रहते हुए अगर आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स करा है, आपने रेप किया है, ठीक है, तो इफ यू हैव if under any of these sections, if you or anybody publishes or prints the name of rape victim, then you will be punished with an imprisonment of either description or term which may extend to 2 years and shall also be liable for fine. तो मैक्सिमम पनिशमेंट 2 साल प्लस फाइन हो सकता है, ठीक है. मिनिमम पनिशमेंट 2 साल से कम एंड फाइन, ठीक है. नथिंग इन सबसेक्शन 1 एक्सटेंड्स टू एनी प्रिंटिंग और पब्लिकेशन ऑफ द नेम और एनी मैटर. अब इसका एक्सेप्शन क्या है? बाय एनी, बाय और, अंडर, बाय और अंडर द ऑर्डर इन राइटिंग ऑफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, ठीक है, या पुलिस स्टेशन का जो ऑफिसर इंचार्ज है वो इन गुड फेथ आपको परमिशन दे दे कि हाँ आप जाइए और नाम लिख दीजिए, आप यू कैन प्रिंट द नेम और पब्लिश द नेम, ठीक है. विक्टिम खुद इसको ऑथराइजेशन दे दे, ठीक है, ठीक. या फिर जो नेक्स्ट फ्रेंड होता है विक्टिम का एंड विक्टिम इज डेड और इनसेन, तो नेक्स्ट फ्रेंड आपको परमिशन दे दे, ठीक है. तो इन तीन लोगों की परमिशन से आप रेप अक्यूज, रेप विक्टिम का नाम प्रिंट या पब्लिश कर सकते हो, ठीक है. नाउ सेक्शन 73 क्या कहता है? Whoever prints or publishes any matter in relation to any proceeding before a court with respect to offence referred to in section 72 without previous permission of such court, ठीक है. अब अगर आप कोर्ट में भी, रिमेंबर दिस थिंग, अगर आप कोर्ट में भी यू टेक अ नेम ऑफ अ रेप विक्टिम, देन ऑल्सो यू विल बी पनिश्ड, ठीक है. दिस आई थिंक इज for advocates. I primarily feel this is for advocates. You have to take the permission of court, then only you can publish or you can print the name of that uh, rape victim, ठीक है ना. Now let us see some important sections of criminal force and assault against women, ठीक है ना. Section 75 का कहता है a man committing any of the following acts, ठीक है. आप ये कुछ भी चीजें कर रहे हैं, that will be sexual harassment. First, physical contact and advances involving unwelcome and explicit sexual overtures, ठीक है ना. आप कोई सेक्सुअल जेस्चर लड़की की तरफ करते हो या उसकी तरफ कोई ऐसा बढ़ते हो ये करने के लिए, ठीक है, देन दैट इज सेक्सुअल हैरेसमेंट, ठीक है. सेक्सुअल फेवर डिमांड करते हो या उससे कहते हो कि प्लीज मुझे सेक्सुअल फेवर दो, दैट इज ऑल्सो सेक्सुअल हैरेसमेंट, ठीक है. अब अगेंस्ट द विल ऑफ अ वुमन इफ यू आर शोइंग पोर्नोग्राफी, that is also sexual harassment. The word here against the will is important, ठीक है, ठीक है. और making sexually colored remarks, ठीक है. Now sexually colored remarks, who will determine? The girl will determine, and on that determination she will file a complaint, और उसके बाद कोर्ट में the judge will decide that whether it was a sexually colored remark or not, ठीक है. Any man who commits the offence is specified in clause 1 or clause 3, ऊपर जो clause दिए हुए हैं, shall be punished. मैक्सिमम पनिशमेंट क्या है? 3 साल का पनिशमेंट है और विद फाइन, ठीक है, या फिर फाइन देके भी छोड़ा जा सकता है या फिर आपके ऊपर दोनों पनिशमेंट लगाई जा सकती है, ठीक है. अब क्लॉज 4 में अगर आप सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क पास करते हो तो आपको मैक्सिमम 1 साल की सजा हो जाएगी या फिर फाइन देके छोड़ दिया जाएगा या दोनों चीजें हो सकती हैं, ठीक है ना. सेक्शन 78 कुछ मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा था. स्टॉकिंग देखता है सेक्शन 78 क्या है.
And why am I covering these sections is because young boys and young men need to be aware of these laws. ठीक है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि you do certain things which you don't intend but that are covered under some offense, under some act. ठीक है, तो आपको पता नहीं होता, आपसे आपसे वो क्राइम हो जाता है. ठीक है, दैट इज वाई यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस लॉस. ठीक है, सेक्शन 78 क्या कहता है? Any man who follows a woman and contacts or attempts to contact such woman to foster personal interaction repeatedly despite a clear indication of disinterest by such woman. अच्छा, ये कहता है कि अगर आप किसी वुमेन को उसके बार बार एक डिसइंटरेस्ट, क्लियर इंडिकेशन ऑफ डिसइंटरेस्ट शो करने के बावजूद, लड़की इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है, डिसइंटरेस्ट दिखा रही है कि भाई मैं मुझे इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा दिखा रही है, लेकिन उसके बाद भी आप लड़की से कोई कांटेक्ट बनाना चाह रहे हो, कांटेक्ट इन टर्म्स ऑफ फिजिकल कांटेक्ट नहीं, मतलब कैसा भी कांटेक्ट हो सकता है, यू आर जस्ट ट्राइंग टू गेट टू नो द गर्ल इज ट्राइंग टू से नो नो गेट अवे फ्रॉम मी, उसने क्लियरली इंडिकेट कर दिया है. द वर्ड हियर इज क्लियर इंडिकेशन. ठीक है ना, क्लियर इंडिकेशन होना चाहिए लड़की की तरफ से. ठीक है, अगर आप ऐसा लगातार कर रहे हैं लड़की की क्लियर इंडिकेशन होने के बावजूद भी, देन दैट विल बी स्टॉकिंग. ठीक है, अगर आप किसी लड़की का इंटरनेट हिस्ट्री देख रहे हो, ईमेल देख रहे हो, या किसी भी तरीके की इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन उसका ट्रैक कर रहे हो, मॉनिटर कर रहे हो, बट ट्रैक करना तो छोड़ो, मॉनिटर कर रहे हो, आप देख रहे हो बस ऊपर से, दैट इज ऑल्सो स्टॉकिंग. ठीक है ना, प्रोवाइडेड दैट सच कंडक्ट शैल नॉट अमाउंट टू स्टॉकिंग इफ अ मैन हु परसूड इट प्रूव्स दैट. अब स्टॉकिंग के ऊपर आपके ऊपर इल्जाम लग गए, नाउ हाउ विल यू कम आउट ऑफ दैट स्टॉकिंग का इल्जाम? तो आप ये दिखा दो कि इट वॉज परसूड फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग और डिटेक्टिंग क्राइम and the man accused of stalking had been entrusted with the responsibility of prevention and detection of crime by state. आप ये दिखा दो कि जो आप ये काम कर रहे हो ये आपको स्टेट ने काम दिया था. ठीक है, सरकार ने आपको काम दिया था कि आप या तो उनका मोबाइल चेक करो या उनका कांटेक्ट बनाने की कोशिश करो. ठीक है, ये आपको गवर्नमेंट ने काम दिया है. ठीक है, it was pursued under any law or to comply with any condition or requirement imposed by any person under law. ठीक है, या तो किसी आदमी ने आपको ऊपर आपको ये ड्यूटी दी थी, इज अ पर्सन हु हैज बीन ऑथराइज्ड बाय लॉ, ही हैज गिवन यू दिस ड्यूटी कि आप जाइए और ऐसा ऐसा ऊपर ऊपर जो क्लॉज 1 और 2 में काम दिया है ये करिए. ठीक है, और थर्ड रीजन बहुत ही जेनरिक सा रीजन है कि यू जस्टिफाई योर कंडक्ट, आपको अपना कंडक्ट जस्टिफाई करना पड़ेगा. ठीक है, पनिशमेंट क्या है? पहली बार आप स्टॉकिंग में पकड़े गए हैं, द मैक्सिमम पनिशमेंट इज 3 years इम्प्रिजनमेंट है. ठीक है ना, और फाइन भी आपके ऊपर लगाया जाएगा. ठीक है, लेकिन अगर आप दोबारा तिबारा पकड़ लिए गए तो भैया आपको 5 साल तक की सजा हो जाएगी और पैसा अलग देना पड़ेगा. ठीक है, लाइबल फॉर फाइन. ठीक है, who were intending to insult the modesty section 79. अब ठीक है, वर्ड्स जस्ट आप इंसल्टिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, आप वुमेन की मॉडेस्टी को इंसल्ट करने जा रहे हैं. कैसे होगा वो इंसल्शन, आप इंसल्ट कैसे करेंगे? whoever intending to insult the modesty of a woman utters any word, आपने कुछ कह दिया है, कोई साउंड निकाल दिए हैं, जेस्चर कर दिया है, या आपने कोई सामान उनको निकाल के दिखाया, एग्जिबिट्स एनी ऑब्जेक्ट इन एनी फॉर्म. ठीक है, और आपका इंटेंशन कैसा है? दैट सच वर्ड और साउंड शैल बी हर्ड और दैट सच जेस्चर और ऑब्जेक्ट शैल बी सीन बाय सच वुमेन और इंट्रूड्स अपॉन द प्राइवेसी ऑफ सच वुमेन. ठीक है, और ऐसा आपने जो जो भी जेस्चर या जो भी साउंड या जो भी ऑब्जेक्ट उनको दिखाया वो उनकी प्राइवेसी को एक तरीके से हार्म कर रहा है. ठीक है, इट शैल बी पनिश्ड विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट विच मैक्स इनटू 3 years. ठीक है, मैक्सिमम 3 साल की सजा मिलेगी. ठीक है, तो आज यहाँ तक रखते हैं. आई होप all the young men and boys who are listening to this, not even young but all the male members of the society who are hearing this, hope कुछ आपको लॉज ये सब ध्यान में रखने पड़ेंगे. ठीक है, so thank you for watching and have a good day ahead and a happy new year.